Hello everyone, I'm Isha Rajput from ABS Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, we have discussed numerical problems on EMF equation and no load condition of transformer. And in this today's lecture, we will going to discuss numerical problems on equivalent circuit of the transformer. So first problem is a 25 kVA 2200 upon 220 volt 50 hertz single phase transformer has following parameters. So this is rating of the transformer 25 kVA 2200 upon 220. ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग दी हुई है एंड R1 इज इक्वल टू 1.75 ओम गिवन है, R2 0.0045 ओम गिवन है. R1 मीन्स primary circuit resistance, R2 means secondary winding resistance, and X1 here is given 2.6 ohm, that is primary reactance. X2 means reactance of secondary winding, and this is equal to 0.0075 ohm. So these parameters are given here, and we have to calculate first one equivalent resistance refer to primary and then secondary. पहले हमें equivalent circuit refer to primary calculate करना है, फिर हमें रेफर टू सेकेंडरी कैलकुलेट करना है. सेकेंड वन वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी एंड देन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी. सेम उसी तरीके से जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाला, रिएक्टेंस भी हम निकालेंगे रेफर टू प्राइमरी एंड देन रेफर टू सेकेंडरी, राइट. सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So first one, we will calculate transformation ratio, right? So transformation ratio is represented by K and this is equal to V2 upon V1. V2 यहाँ पर क्या given है? If we see rating of the transformer, this is 2200 primary का दिया हुआ है, voltage 220 voltage secondary का दिया हुआ है. So what will be K? K will be V2 upon V1. So V2 is 220. This is 220 upon 2200 and this will be equal to 0.1. So transformation ratio कितना आ गया? 0.1 आ गया. Now first one we have to calculate equivalent resistance referred to primary. So equivalent resistance referred to primary is represented by R01 and its formula is R1 plus R2 dash. ये इसका फॉर्मूला होता है. And here R2 dash क्या होता है? R2 dash is equal to R2 upon K square, right? So R1 कितना दिया हुआ है? 1.75 ओम एंड R2 हमें कितना गिवन है? 0.0045 एंड K अभी हमने कैलकुलेट किया 0.1. So on solving this, we will get 2.2, right? 2.2 ohm आ जाएगा. Now we have to calculate resistance, equivalent resistance referred to secondary also. Secondary also, so इसको हम इंडिकेट करते हैं R02 से. रेफर टू प्राइमरी को हम R01 से डिनोट करते हैं, रेफर टू सेकेंडरी को हम R02 से डिनोट करते हैं एंड इट्स फॉर्मूला विल बी R2 प्लस R1 डैश. जब हम R01 लिखते हैं तो R2 डैश लिखते हैं, जब हम R02 लिखते हैं तो R1 डैश लिखते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू R2 प्लस एंड R1 डैश क्या होता है? R1 multiplied with K square, which we have already discussed in our previous lecture on equivalent circuit of the transformer. So R2 कितना given है? R2 is 1.1. नहीं, R2 हमें कितना given था? R2 हमें given है 0.0045 and R1 हमें कितना given है? 1.75 and K कितना है? 0.1. It will be square and it will be calculated as 0.022. तो ये R02 आ गया. Now सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट रिएक्टेंस. पहले हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, अब हम रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे.
इसी तरीके से बिल्कुल जैसे हमने R01 कैलकुलेट किया था, नाउ वी विल कैलकुलेट आर X01। तो सिमिलर यही सेम फॉर्मूला होगा जैसे रेजिस्टेंस के लिए था, X1 प्लस X2 डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू X1 प्लस X2 अपॉन के स्क्वायर। X1 हमें कितना दिया हुआ है, X1 है 2.6, X2 हमें कितना दिया हुआ है 0.0075, एंड के अभी हमने कैलकुलेट सबसे ऊपर किया था, दैट इज 0.1। इट विल बी स्क्वायर, सो इट विल बी कैलकुलेटेड एज 3.35। 3.35 ओम आ जाएगा। नाउ वी विल कैलकुलेट X02। X02 का फॉर्मूला भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने R02 का लिखा था। दिस इज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। X01 का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी, एंड X02 का मतलब है रेफर टू सेकेंडरी। जब हम 2 लिखते हैं दैट मीन्स रेफर टू सेकेंडरी होता है, 1 लिखते हैं तो दैट मीन्स रेफर टू प्राइमरी होता है, राइट। सो इट्स फॉर्मूला इज X2 plus X1 dash, right? And this is equal to X1 multiplied with K square, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने रेजिस्टेंस में यहां पर किया था, राइट। एंड X2 हमें कितना गिवन है 0.0075 प्लस X1 हमें कितना गिवन है, X1 है 2.6 एंड मल्टीप्लाइड विथ 0.1 square. So it will be calculated as 0.0335, right? So in this way, we have calculated all the parameters. This was transformation ratio. This was equivalent resistance referred to primary. This is equivalent resistance of the transformer referred to secondary. This is reactance of the transformer referred to primary. And this is reactance of the transformer referred to secondary. इस तरह से हमारे सारे आंसर्स आ गए। Now we will discuss next problem in the next slide. So next problem is a 20 kVA 2000 upon 200 volt single phase 50 hertz transformer has a primary resistance of 1.5। ये हमें रेटिंग दी हुई है 20 kVA and 2000 upon 200, दिस इज द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और 50 हर्ट्ज सप्लाई दी हुई है। प्राइमरी रेजिस्टेंस कितना दिया, प्राइमरी रेजिस्टेंस मींस R1 जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1.5 ओम। रिएक्टेंस मतलब X1 हमें कितना दिया हुआ है 2, राइट। नाउ सेकेंडरी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.015 ओम। सेकेंडरी रिएक्टेंस हमें गिवन है, मतलब X2 हमें गिवन है 0.02 ओम। द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 1 एम्पियर, दैट मींस I0। ये I0 हमें गिवन है क्योंकि नो लोड कंडीशन में कितना करंट फ्लो करता है, I0 करंट फ्लो करता है। तो नो लोड करंट जो दिया हुआ है वो 1 एम्पियर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I0। एंड नो लोड कंडीशन पर पावर फैक्टर कितना गिवन है 0.2, मींस ये क्या दिया हुआ है हमें cos phi नॉट दिया हुआ है, ये cos phi नॉट की वैल्यू है। एंड वी हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन रिएक्टेंस एंड देन इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी। हमें सारे पैरामीटर्स जो कैलकुलेट करने हैं वो रेफर टू प्राइमरी कैलकुलेट करने। दैट मींस हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें R01 कैलकुलेट करना है, हमें X01 कैलकुलेट करना है, एंड हमें Z01 कैलकुलेट करना है, राइट। हम 1 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज दिस इज रेफर टू प्राइमरी। अगर रेफर टू सेकेंडरी होता तो हम यहाँ पर R02 लिखते, X02 लिखते और Z02 लिखते, राइट। नाउ सेकेंड वन वी हैव टू कैलकुलेट सप्लाई करंट। सप्लाई करंट मतलब इनपुट करंट, दैट इज I1 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, राइट।
नाउ थर्ड वन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉपर लॉस. टोटल कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है मींस प्राइमरी कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी. तो प्राइमरी कॉपर लॉस होंगे I1 स्क्वायर R1 और सेकेंडरी में कितना होगा I2 स्क्वायर R2. राइट, इस तरह से हमें टोटल कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है. एंड लास्ट वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. Now we will solve this problem. So first of all, we will calculate the transformation ratio. सबसे पहले हम transformation ratio calculate करेंगे, जो कि हम रेटिंग से कैलकुलेट करेंगे. तो रेटिंग में हमें कितनी दी हुई है 2000 अपॉन 200. तो 2000 क्या हुआ प्राइमरी एंड 200 क्या हुआ सेकेंडरी, एंड दैट इज सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी. सो दिस विल बी कैलकुलेटेड एज 0.1. राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट. हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी. तो इसलिए हम R01 इसको लिखेंगे और इसका फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज R1 प्लस R2 डैश एंड दैट इज R2 अपॉन ए स्क्वायर. राइट, एंड नाउ हम वैल्यू पुट कर देंगे. R1 हमें 1.5 दिया हुआ है प्लस R2 गिवन है 0.015 एंड K अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.1 square. So it will be calculated as 3. Right? Now next we will calculate reactance. Reactance of the transformer referred to primaries. So it will be written as X01 and its formula will be X1 plus X2 dash, and X2 dash is equal to X2 upon K square. Just similar to resistance, right? X1 given है 2, X2 हमें given है 0.02 ohm. This will be divided by 0.1 square, right? And this will be calculated as 4, right? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट Z01. अब हमें कैलकुलेट करना है. तो जब हम R01 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, X01 कैलकुलेट कर चुके हैं, नाउ यूजिंग दीज टू वैल्यूज X01 एंड R01 we can easily calculate the magnitude of Z01, that is equal to under root R01 square plus X01, right? And this will be calculated as 5. Right? Now next will calculate. उसके बाद हमें ये फर्स्ट वन हमारा कैलकुलेट हो गया. फर्स्ट में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था? फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना था रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस. नाउ सेकंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी करंट हम इंडिकेट करते हैं I1 से, एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो रेटिंग हमें कितना दिया हुआ है? रेटिंग हमें 20 kVA दिया हुआ है. तो 20 kVA में है, किलो में है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे? प्राइमरी वोल्टेज से. प्राइमरी वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है? दैट इज 2000. सो इट विल बी I1 and it will be calculated as 10 ampere. तो ये प्राइमरी करंट हमारा 10 एम्पियर आ गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉपर लॉस. अब हमें टोटल कॉपर लॉस कैलकुलेट करने. टोटल मतलब दी कॉपर लॉस इन प्राइमरी प्लस टोटल कॉपर लॉस इन सेकेंडरी. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला कॉपर लॉस. कॉपर लॉस के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल कॉपर लॉस या तो हम कैलकुलेट कर लें I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 से, या तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करें, या फिर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं I1 स्क्वायर R0. तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमें R2 चाहिए, राइट? R2 चाहिए, I2 भी चाहिए, और I2 हमारे पास नहीं है. बट अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास I1 भी है, R01 भी है. सो वी विल यूज सेकेंड. तो अकॉर्डिंग टू दिस I1 हम पुट करेंगे, दैट इज 10 स्क्वायर. R01 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, दैट इज 3 ohm, राइट? तो दिस विल बी 300 वॉट. तो ये जो है 300 वॉट आ गया कॉपर लॉस, राइट? नाउ इन द लास्ट वन
लास्ट वन में हमें क्या करना था, अब हमें ड्रॉ करना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्म. सो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए first we will erase this and we will draw equivalent circuit of the transformer, right? To draw the equivalent circuit of the transformer, we have to find out parameters of the equivalent circuit of the transformer, right? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. x01, ये हमारा, अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इसका होता है इक्विवेलेंट सर्किट में. यहाँ पर हम प्राइमरी रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर प्राइमरी रिएक्टेंस. देन यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग सर्किट होता है, दैट इज हैविंग पैरेलल पैरामीटर्स, वन रेजिस्टेंस एंड अनदर रिएक्टेंस. सो दिस इज द प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट होता है. एंड यहाँ पर हम सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस इज द सेकेंडरी. यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आ जाता है एंड रिएक्टेंस आ जाता है, और यहाँ पर हम लोड लगाते हैं, राइट. तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ये होता है R1, दिस इज X1, दिस इज R01, दिस इज X01, सॉरी दिस इज R0 only. This is R0 and this is X0. Here V1, here current is flowing I1, here I0. I0 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर जाता है IE एनर्जी कंपोनेंट और यहाँ जाता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM, राइट. एंड हेयर E2 सेकेंडरी में, और यहाँ पर आपका होता है I2 करंट, ये होता है R2, ये होता है X2. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर का. बट ट्रांसफॉर्मर की इक्विवेलेंट सर्किट में ये सारे पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो फॉर दिस फर्स्ट वन, I0 हमें गिवन है, I0 नो लोड करंट हमें गिवन है, कितना है 1 एम्पियर. और क्या गिवन है नो लोड कंडीशन के लिए, cos phi नॉट गिवन है. तो cos phi नॉट हमें गिवन है 0.2, राइट. नाउ वी कैन कैलकुलेट IE. इसका IE कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. IE का हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, दैट इज I0 cos phi नॉट, जो हम नो लोड फेजर डायग्राम से निकालते हैं. तो ये फॉर्मूला हमारा आता है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, राइट. नाउ वी विल कैलकुलेट नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज IM. IM का फॉर्मूला भी हम फेजर डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज I0 साइन phi नॉट. और वी कैन ऑल्सो राइट दिस I0 स्क्वायर माइनस IE स्क्वायर अंडर रूट. इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, सेम ही आंसर आएगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.98 एम्पियर. दैट विल बी कैलकुलेटेड एज 0.98 एम्पियर, राइट. अब हम R0 और X0 को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग this IE component, IM component, right. So I0 will be, I0 का फॉर्मूला अगर यहाँ पर देखें हम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन I, और यहाँ पर V कितना है V1, राइट. सो V1 अपॉन IE and that will be equal to 2000 upon 0.2, right, and that will be 10,000 ओम. और इसको हम 10 किलो ओम भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से X0 हम कैलकुलेट करेंगे, तो X0 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन IM, दैट इज इक्वल टू 2000 अपॉन IM कितना है 0.98, राइट. सो इट विल बी इक्वल टू 2000 ओम और 2 किलो ओम. ठीक है, तो ये वैल्यूज इस तरह से आ गई हैं. नाउ वी
we can mention these values in the equivalent circuit. Equivalent circuit में हम इनको mention कर सकते हैं. So this will be R नॉट को हम क्या लिखेंगे, that is equal to 10 किलो ओम यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं. फिर उसके बाद एक्स नॉट को हम मेंशन कर सकते हैं, दैट इज 2 किलो ओम. बाकी चीजें हमें गिवन ही है. आई ई को भी हम यहाँ पर लिखेंगे, आई ई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, आई ई इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, आई एम इज इक्वल टू 0.98. आर वन एक्स नॉट एक्स वन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आर वन हमें दिया हुआ है 1.5 ओम, तो यहाँ पर हम 1.5 ओम मेंशन कर देंगे. उसके बाद ये हमें दिया हुआ है 2 ओम, तो 2 ओम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. उसके बाद आर नॉट टू हमें गिवन है 0.015 ओम, यहाँ पर मेंशन कर देंगे. एक्स टू हमें गिवन है 0.02 ओम. सो वी कैन मेंशन ऑल दी पैरामीटर्स एंड वी कैन ड्रॉ कंप्लीट phasor equivalent circuit of the transformer, right? So this was the solution of the second problem. Now in the next lecture, we will solve some numerical problems on efficiency and voltage regulation of the transformer, right? So this was the problems on equivalent circuit of the transformer. This is reference. Thank you for watching this video.